systems की. Can you see these slides? जी सर नजर आ रही है. Okay, so first we will talk about stand-alone systems. They are very simple. ठीक है, अगर आपके पास डीसी लोड है फॉर एग्जांपल, तो सिंपली यू डू नॉट नीड एनी स्टोरेज इन स्टैंड-अलोन सिस्टम्स. if some applications, for example, अगर आपने कहीं से जमीन से पानी को निकालना है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, so you will not need any battery. These are very simple systems. You will have photovoltaic cells and then you will have your load, because when you are going to extract water from the ground and you are going to store it in tanks, ठीक है, तो इसके लिए फिर आप जब when there is sun, of course, these pumps they will operate and they will extract water from the ground. इनकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, because you are not going to add any battery, you are not going to add any inverter. DC pump, just you have photovoltaic cells and you will have some DC loads such as a pump. So that will be the cheapest stand-alone system. लेकिन if you have loads, AC loads as well, और आपकी requirement है for example रात के वक्त भी आपको electricity चाहिए, energy चाहिए, then in that case a stand-alone system, it will also have some charge controller. There will be some battery. charge controller क्या करेगा, बैटरी की चार्जिंग ओवरचार्ज कहीं ना हो जाए, एक खास चार्ज से ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो जाए, रेट ऑफ चार्जिंग, इसको बेसिकली चार्ज कंट्रोलर कंट्रोल करता है. ठीक है, सो इफ़ यू नीड एनर्जी इन द नाइट फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम, उसके लिए फिर आपको एक बैटरी भी ऐड करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स यू मे हैव सम डीसी लोड्स एज वेल एज सम एसी लोड्स, सो यू विल आल्सो नीड सम इन्वर्टर, okay, to aid with your stand-alone system. So there will be a stand-alone system. It will have some photovoltaic panels, photovoltaic modules. Then there will be a charge controller if you have some DC loads. So you can supply energy from photovoltaic cells to directly to DC loads. Otherwise, you will have a battery when there is sun. Okay, you will store the energy in the battery, and so that you can use it when the sky is overcast or when there is no sun in the night, of course. And if you have AC loads, then you will have some inverters as well. अगर आपके पास सिर्फ DC loads हैं, उस सूरत में फिर आपकी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होगी. उस सूरत में आपका जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, because if you have some inverters, then there will be losses in the inverters at the same time. So overall efficiency of the system, it will not be, it will be less, of course. Okay, so इसमें जी क्यों, अच्छा एक मिनट प्लीज, ये आप लिख ले और नीचे ऑफिस में रख ले, फिर मैं आके ले लूँगा, ठीक है. Okay, then we have हाइब्रिड सिस्टम. ऑफ कोर्स, तो हाइब्रिड सिस्टम में आप ये करते हैं कि वन मोर थिंग, अगर हम डीसी लोड्स इस्तेमाल करें अपने घरों में सारे के सारे, फॉर इंस्टेंस आजकल जिस तरह एलईडी बल्ब्स हैं, ठीक है, उसके अलावा एलईडी लाइट्स हैं, उसके अलावा आप डीसी फैंस हैं, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें हो, तो फिर आपकी इन्वर्टर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी आपकी सिस्टम की ज़्यादा हो जाएगी. इफ़ यू हैव ऑल द लोड्स इन योर होम विच आर डीसी, ऑफ कोर्स, ठीक है. बैटरी की इसलिए ज़रूरत पेश आएगी कि आप रात के वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और जब स्काई ओवरकास्ट हो तो उस वक्त भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है. दूसरा सिस्टम हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है. इसके भी कंपोनेंट्स वही हैं जो स्टैंड-अलोन सिस्टम्स के थे, लेकिन at the same time we also have some diesel generator set, wind turbine or grid backup, etc. Diesel generator set, if there is sun से आप energy, photovoltaic modules हैं, panels हैं, they will provide electricity to your DC load through charge controller. Battery will be charged, or through inverter you will also supply energy to your AC loads.
लेकिन समटाइम्स इट में हैपन दैट आपकी बैटरी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, स्टोरेज की कैपेसिटी इतनी नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप उसको बैकअप कर सकते हैं बाय सम डीजल जनरेटर और एंड विंड टर्बाइंस, और समटाइम्स यू मे आल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड, और वहां से आप डीजल जनरेटर है या विंड टर्बाइन है, उससे आप एसी लोड्स को आप डायरेक्ट ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीसी लोड्स हैं, वहां से फिर आप विंड टर्बाइंस और डीजल जनरेटर्स रेक्टिफायर के थ्रू आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, वहां से फिर आप डीसी लोड को भी सप्लाई कर सकते हैं। It may also happen that wind turbines हैं, when there is wind, of course, they will operate and they will supply electricity. हाइब्रिड सिस्टम्स में आप बेसिकली जब आपके पास विंड है तो उस वक्त आप इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को हार्वेस्ट करें विंड की, और उसको रेक्टिफाई करें और बैटरी में स्टोर करें। और व्हेन देयर इज नो मोर सन, यू कैन सप्लाई द एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, ओके, सप्लाइड बाय विंड टर्बाइंस। ये हमारे पास बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम है। देन वी हैव ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स में यू डू नॉट एड एनी बैटरी, आपने ग्रिड के साथ अपने सिस्टम को डायरेक्टली कनेक्ट किया है, ठीक है। व्हाट यू डू इज, इन्वर्टर है, कंडीशनर है, ऑफ कोर्स डीसी को आप एसी में कन्वर्ट करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, वहां से अपने एसी लोड्स को आप सप्लाई करते हैं, और ग्रिड से आप इलेक्ट्रिसिटी ले भी सकते हैं, और ग्रिड को आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कर सकते हैं। मसलन रात के वक्त व्हेन यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आपने चूंकि बैटरी का सिस्टम नहीं लगाया है, तो दिन के वक्त आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट फ्रॉम द ग्रिड, बिकॉज योर सिस्टम हैज बीन कनेक्टेड विद द ग्रिड एज वेल। एक और सिस्टम है जो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं नेट मीटरिंग। एक बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है। इसमें अगेन it is a grid connected system. You do not have any previous concept ही है जो grid connected system की है। इसको थोड़ा सा फर्दर इस फिगर की मदद से हमने elaborate किया है, और इसको हम नेट मीटरिंग का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल से, पैनल से यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, डीसी ऑफ कोर्स, उसको फिर आप एसी में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन देयर इज ए मीटर, और ये मीटर दोनों डायरेक्शंस में चल सकता है। ड्यूरिंग द डे, फॉर एग्जांपल, यू आर इन योर क्लास, यू आर इन प्यास, ओके, यू आर नॉट गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी दैट योर फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर जनरेटिंग। एक तरीका तो ये है कि बैटरी आप ऐड करें, उसको स्टोर करें, और रात के वक्त आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू परचेज बैटरीज, दे हैव सम लाइफ, मे बी 2 years 3 years, उसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम, और हाँ, when you have a lot of energy available which you are not using, that energy is wasted during the day, for instance, या वीकेंड्स पे आप कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, आपका फोटोवोल्टाइक जो है सिस्टम है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस वक्त यूज करने के लिए कोई बंदा नहीं है घर में। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एक मीटर यूटिलिटी के साथ हम लगाते हैं। This meter, when you get electricity from the utility grid, वो for example clockwise direction में चलता है, and when your system supplies electricity to the grid, ये फिर counter clockwise direction में चलता है, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेते हैं तो ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन में चलेगा, और जब आप सप्लाई करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में चलेगा, और महीने के आखिर में फिर हम देखेंगे कि उसकी रीडिंग क्या है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू हैव सप्लाइड मोर एनर्जी टू द ग्रिड और ग्रिड हैज सप्लाइड मोर एनर्जी टू यू, उसका जो डिफरेंशियल होगा, ठीक है, उसके बेस पे फिर टैरिफ्स डिफाइन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज्यादा सप्लाई की है ग्रिड को, तो इट इज पॉसिबल दैट एट द एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड ग्रिड आपको कुछ पैसे दे देगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, कंज्यूम किया एज कंपेयर टू द एनर्जी दैट यू हैव सप्लाई टू द ग्रिड, फिर आपको ग्रिड को कुछ जो यूटिलिटी है उसको कुछ पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ है कि व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर इलेक्ट्रिसिटी, वो फिर आप सेल कर सकते हैं ग्रिड को। और इसका फायदा फिर अगेन आई शुड रिपीट कि इसमें चूंकि आपने बैटरी सिस्टम आपने ऐड नहीं किया है, तो रात के वक्त फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रिड से आप बेसिकली एनर्जी ले सकते हैं,
ठीक है, तो बैटरी की जो कास्ट है उसको आप बचा लेते हैं, और जो आपकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी आपका जो सिस्टम है वो जनरेट करता है उसको आप सप्लाई करते हैं ग्रिड को। इसको हम कहते हैं नेट मीटरिंग, और ये कंसेप्ट इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एज वेल। और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, ठीक है, तो वो जो है दे हैव इंस्टॉल्ड फोटोवोल्टाइक पैनल्स, ठीक है, एंड व्हेन देयर इज नो सेशन इन द असेंबली प्रोबेबली, और जब इसकी जो एनर्जी जो नेशनल असेंबली की जो फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसको फिर ये सेल करते हैं टू आईएसको। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। Good. Here we have efficiency comparison of technologies, जो different technologies जिनकी हमने बात की है previously, monocrystalline silicon की हमने बात की थी, multicrystalline की बात की थी, then we talked about silicon concentrated cells की बात की थी, जिसमें हम concentrate करते हैं solar energy को एक very small area के ऊपर with the help of some dishes और some lenses। और उसके बाद फिर हमने बात की थी मल्टी जंक्शन कंसंट्रेटर की बात की थी, थिन फिल्म फोटोवोल्टाइक सेल्स की हमने बात की थी, उसकी भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी। तो यहाँ पे इस फिगर में जो लेबॉर्ट्री के अंदर आप मुख्तलिफ सेल्स को टेस्ट करते हैं, तो जिनकी एफिशिएंसीज ओवर द ईयर्स जो एफिशिएंसीज अचीव की गई थी, बेसिकली वो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में वो चीज़ शो की गई है। ठीक है, ये सेल की एफिशिएंसी लेबॉर्ट्री में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। लेकिन अब सेल से जब मॉड्यूल्स बनाते हैं, सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के दरमियान ऑफ कोर्स सेल्स के दरमियान वायर्स हैं, वहाँ पे भी पावर लॉस होता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लोअर एफिशिएंसी ऑफ मॉड्यूल्स एज कंपेयर्ड टू द सेल्स। सेल्स की एफिशिएंसी फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम इस फिगर को अगर हम देखें, तो जो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स जो हैं, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो सिंगल जंक्शन सेल्स हैं जो इस वक्त कमर्शियली अवेलेबल है, उनकी हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ओवर द इयर्स इनकी एफिशिएंसी कोई 25% से क्रॉस कर गई थी 2014 में। लेकिन कमर्शियली जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी कोई मे बी 18%, 17%, 16%। लेकिन लेबॉर्ट्री में जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल है उसकी एफिशिएंसी 25% से ज़्यादा अचीव की गई इन 2014 में, ठीक है। लेकिन अगर सिलिकॉन कंसंट्रेटर सेल्स की बात करें तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेटर सेल्स की एफिशिएंसी इवन मोनोक्रिस्टलाइन सेल से भी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लाइट फोटॉन्स को हम कंसंट्रेट करते हैं तो उसके नतीजे में जो इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज बढ़ जाती है और उससे सेल की जो पावर आउटपुट है वो भी बढ़ जाती, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस स्लाइड्स, इन प्रीवियस लेक्चर्स। देन वी हैव मल्टी जंक्शन कंसंट्रेटेड सोलर सेल्स। इनकी एफिशिएंसी जो है इट इज 2017 में इट क्रॉस दिस 45 की जो लाइन है एफिशिएंसी की जो है उसको भी क्रॉस कर गए हैं। लेकिन इस फिगर में 2014 तक जो इनकी एफिशिएंसी है तकरीबन 45% तक अचीव कर गई थी। इज इट क्लियर? जैसा कि हमने लास्ट शुरू में हमने बात की थी कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, जो एनर्जी अवेलेबल है सिलिकॉन के फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं सिंगल जंक्शंस के लिए, उनके 49.6% ऑफ द सोलर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर हार्वेस्टिंग। लेकिन प्रैक्टिकली लेकिन उसकी जो लिमिट है कितनी वो हार्वेस्ट कर सकता है, वो कोई 33% उनकी एफिशिएंसी की लिमिट है सिंगल जंक्शन की। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर मल्टी जंक्शन उसमें एक जंक्शन के अलावा डिफरेंट हम मटेरियल्स इस्तेमाल करें जिनकी बैंड गैप एनर्जी डिफरेंट है, तो वो फिर जो फोटॉन्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट बैंड्स की जो एनर्जीज हैं उनको फिर वो मल्टी जंक्शन के डिफरेंट जंक्शंस हैं उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। इसी वजह से जो मल्टी जंक्शन कंसंट्रेटर जिसमें हमने लाइट को कंसंट्रेट भी किया है उसकी एफिशिएंसी 45% से बढ़ गई है। लेकिन ये लेबॉर्ट्रीज की एफिशिएंसीज हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। देन वी हैव मल्टी क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं जिनकी एफिशिएंसी ऑफ कोर्स लेस देन सिंगल जंक्शन और सॉरी मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल से मल्टी क्रिस्टलाइन की कम है, ठीक है। बट दे आर चीप बिकॉज उनकी फैब्रिकेशन की जो टेक्निक है that is less costly,
थिन फिल्म जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं उनकी भी हमने बात की थी, क्योंकि इनमें मटेरियल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है that is not that much costly as compared to multicrystalline silicon photovoltaic cells and monocrystalline silicon photovoltaic cells. So they are the cheap, of course, less costly than the crystalline silicon photovoltaic cells due to less material that they use. ओके लेकिन उनकी एफिशिएंसी हम देखते हैं कि ये कोई 20% के आसपास है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी दूसरे मटेरियल्स आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर देयर यूज एज फोटोवोल्टाइक सेल्स। ठीक है, डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल्स आर देयर एंड ऑर्गेनिक सोलर सेल्स आर देयर, पॉलीमर different polymers they are being also investigated for the fabrication, for the construction of solar cells for harvesting solar energy. Is it clear? Of course, dye-sensitized solar cells or organic solar cells हैं, उनकी efficiencies they are around 10% in 2014. So here we have solar power in Pakistan. ये maps हैं USAID ने बनाए हैं। डायरेक्ट नॉर्मल सोलर रेडिएशन है एनवल जो रेडिएशन है पाकिस्तान में, तो डिफरेंट कलर से आपको अंदाजा होता है कि किस इलाके में। और ये साइड पे जो बार है, दिस इज किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो सोलर एनर्जी पड़ती है। ठीक है, ये कलर कोडिंग की मदद से यू कैन हैव सम आइडिया ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कोयटा के आसपास का इलाका अगर हम देखें तो इसमें कलर है, उसको अगर हम लाके ये जो वर्टिकल बार्स जो कलर्स की यहाँ पे उन्होंने स्केल दिया हुआ है, उसको अगर हम देखें तो कोयटा में मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई एनुअल जो पर डे रोज़ाना जो है वो 6 से लेकर 6.5 और इससे ऊपर वाला कलर है मेरा ख्याल में 6.5 से लेकर कोई नहीं, बल्कि शायद ये 7.5 से 8 वाला ये वाला कलर मुझे नज़र आ रहा है। तो एनीवे, ठीक है, ये पर डे एक पर स्क्वायर मीटर का अगर आपके पास एरिया है, ठीक है, तो एवरेज पर डे पूरे साल में रोजाना 7.5 से लेकर 8 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर दिस मच एनर्जी इट फॉल्स, सोलर रेडिएशन इतनी उसके ऊपर पड़ती है। दिस इज डायरेक्ट नॉर्मल सोलर रेडिएशन है। देन वी हैव दूसरी जो फिगर है इसी तरीके से ये मल्टी ईयर 2000 से लेकर 2012 तक का है। ये एनुअल रेडिएशन में पाकिस्तान है इन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और हियर वी हैव द सोलर पार्क इन बहावलपुर, जिसको हम कहते हैं कायद आज़म सोलर पार्क कहते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट है। और फर्स्ट जो इसमें यूनिट लगाया गया था इट वाज 100 मेगावाट का यूनिट लगाया गया था, इट वाज ऑपरेशनल। और प्रॉबेबली इस वक्त कोई इसकी आउटपुट है मोर देन 400 मेगावाट। ठीक है, बेसिकली लैंड और एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो आके वहाँ पे अपने 100 मेगावाट के जो सोलर सिस्टम्स वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में फर्स्ट 100 मेगावाट का जो सिस्टम था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ पे इंस्टॉल किया था। और उसके बाद देयर आर सम चाइनीज कंपनीज एंड प्रॉबेबली देयर इज सम टर्किश कंपनी एज वेल। ठीक है, वो आके उन्होंने फिर 100 मेगावाट्स के वहाँ पे अपने सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं। तो इस वक्त इसकी कैपेसिटी में भी 400 मेगावाट और 500 मेगावाट यहाँ तक पहुँच गई है। Is it clear? So here we finish the solar power. Then we have this thermal power plants. ठीक है, thermal power plants basically जो है इसमें से steam based power plants हैं। thermal power plants में से जो steam based power plants हैं उसमें हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, वहाँ से हीट इज प्रोड्यूस्ड